to have a look at these videos. These are videos where Hindu groups and Hindus in Pakistan are campaigning, protesting right outside the Asif Ali Zardari's residence, seeking justice. And this is a case that's once again has come up from Nawab Shah in Sindh. This is once again Hindu groups saying that their daughters have been forcibly abducted. In this case, a Hindu girl has been forcibly abducted in Pakistan. The protesters chanting slogans against the police and also demanding that former President Asif Ali Zardari intervene and help them recover the girl. Now, the kidnapping, it's been alleged, has been kidnapped by Unnar Mohalla, Qazi Ahmed, by Unnar Mohalla. The kidnapping was held in this area, Unnar Mohalla in Qazi Ahmed town. And the local Hindus there in Pakistan, they actually went to the SSP who refused to help. They actually said that there is a Nikah-nama in place, and that's why this should be deemed that this girl is already married. The panchayat leader said that the abducted girl was under pressure to change her religion and was not being produced in any court. The cops are claiming that the girl eloped with a Muslim boy for love and had entered into a marriage contract with him in a Karachi court. But the counter from them is different, and the claim is very different. What the Hindu groups are saying is that this is all untrue. They have said that the protest, that this is untrue, that the girl has been deliberately abducted and she's been taken and she's been forcibly made to convert. The protesters chanting slogans against the police, and when this group reached Asif Zardari's residence near there, they got close to it. The cops stopped them from advancing to the former president's residence and also persuaded them to end the protest over the assurance that the girl will be eventually produced in court. Now, another panchayat leader has actually claimed that the girl was under serious pressure to change her religion and was not being produced in court. And they are saying that there is a Nikah-nama. The SSP is sharing a Nikah-nama between the girl and the accused. But the family of the girl are saying this is forced. This is not with their consent. Now, is this a series, and does this regularly happen? Let's try and go across to our guest this evening. I have Dr. Bhagchand Bheel of Nimittakaam with me. भागचंद जी, आप खुद पाकिस्तान से हैं, तो मैं जानना चाहता हूं ये जो किस्सा हुआ है नवाब सिंध में, इसमें पुलिस का वर्जन सही है कि जो हिंदू ग्रुप्स क्लेम कर रहे हैं वो सही है? सर, इसमें देखें, ये तो पूरी सीरीज है, आज की नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से इस तरह का मामले जो दर्ज होते आ रहे हैं। ये रिसेंटली जो एक पूजा कुमारी जो है ओड है, जिसको बिल्कुल हालांकि किडनैपिंग के हवाले से आए थे, उनको किडनैप नहीं हो पाई, तो उसके बाद उसको उनके सामने उनको जो है गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद उन लोगों ने जो मिलकर प्रोटेस्ट किया, जो है मेन जो शायरा है उसको जो ब्लॉक करने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से भी लाठीचार्ज और इस तरह की बिल्कुल यानी कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। तो इस तरह के हालात, उससे पहले एक बच्चा जो किडनैप हुआ है आदेश कुमार, अभी बड़े सितम की बात यह है कि आदेश कुमार के लिए जो हमारे सिंध में जितने भी एक्टिविस्ट हैं, अगर वो, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन काफी लोग जो हैं कुछ सपोर्ट में अभी आते हैं अपनी माइनॉरिटीज के लिए, तो उनके भी ऊपर इस तरह के यानी डीएसपी तक का बंदा जो कहता है कि भाई आप जो है यार क्यों, जो आप हिंदू तो नहीं है जो आप इनके लिए इनके साथ आप खड़े हैं। तो इस तरह की लोगों की मानसिकता है, इवन ऑफिशियल अथॉरिटी की भी। जी, पर ये नवाब सिंध के मामले में आपने कोई जानकारी पता की है कि वहाँ क्या हुआ है, यहाँ तक कि वो आसिफ अली जरदारी के घर के बाहर तक पहुँच गए? तो यानी ये बहुत बड़ा मसला है वहाँ। और सिंध में ही क्या ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जहाँ वहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, कोर्ट और पुलिस मदद क्यों नहीं करती? सर बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें देखिए ना, जो नुमाइंदे होते हैं, इवन वो वडीरा शाही अभी तक भी वहाँ काबिज है, और वडीरा शाही के चलते हुए इस तरह में क्या कि पुलिस प्रशासन वो भी मजबूर हो जाती है। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो इस तरह के कोई वडीरे जो भी हैं या एमएलए एमपीएस होते हैं, उनकी इंटरप्टिंग होती है, उनके फोन आ जाते हैं, तो उसके ऊपर वो जो पुलिस एक्शन भी नहीं लेती। और यही मामला इसी तरह का है। तो हालांकि आसिफ अली जरदारी के वहाँ यानी घर पे भी उन्होंने जो है बाकायदे बाहर प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके साथ भी कोई कोऑपरेट नहीं है। तो इस तरह के ये बहुत ही हालात हो रहे हैं। इससे पहले ये मैं आपको पूजा कुमारी का कह रहा हूँ, तो ये भी आपको बताइए कि
ये है अपना रोड़ी सखर का वाकया। तो रोड़ी हाँ। सखर में भी इस तरह की घटना हुई, उस बच्ची को मार दिया गया, लेकिन कोई उसकी कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। और आए दिन अभी इस सिंध में इस तरह की घटनाएं घटती जा रही है, और जो सिलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं, हमारे हाँ। रिप्रेजेंटेटिव, उनकी खामोशी होती है। वो तो बिल्कुल इस तरह के आपको यूं समझे कि पुतलों की तरह होते हैं। एक इक्का दुक्का कोई है बोलने जैसे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई होती नहीं। तो इसका इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान क्या है? क्योंकि वहां तो कहा जाता है कि वहां क्या माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं है, क्या हिंदू संगठन नहीं है, संगठित नहीं है, संगठन नहीं है जो कि इस बात को उठा सके? सर देखिए, कोर्ट्स अभी क्या कहती हैं, वहां की अदालतें देखा क्या जाए आपको तो सपोर्ट नहीं करती? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊं, देखें सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो हमारे जो है एसी एसटी की है। मैं आपको क्लियर तरीके में बता रहा हूँ, सिर्फ भील, मेघवाड़, कागड़ी और कोली बिरादरी की है सबसे ज्यादा मेजॉरिटी। जो इनका जी। वोट बैंक है, यूं समझिए कि 85% है। और बाकी जो अपर कास्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ 15% से भी बहुत ही कम है। और जो हाँ। नुमाइंदे हैं जो पैसे देकर ऊपर चले जाते हैं, जिसमें अब मैं आपको सीधा कहता चलूं कि रमेश कुमार वाकवाणी, जो पहले अपने पीटीआई के साथ थे, अभी फिर दोबारा पीपी में आ गए। और इनकी जी। अमेरिका एक अपना जो है हिंदू फाउंडेशन, हम्म। उसमें जितनी भी जो मेंबरशिप है सिर्फ और सिर्फ हमारे जो जितने भी जो अपर कास्ट है उन लोगों की है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें ये घट रही है, जो गांव में, गोठों में, या डिस्ट्रिक्ट सांगड़ को लें, या दूसरे जितने भी जो जिले हैं, उसमें जो इस तरह के वाकयात होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल तक रिपोर्ट ही नहीं होते। और जो हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी नहीं जाते, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाते हैं। असल में अगर तो इस तरह की नुमाइंदगी नीचे तबके के लोगों को अगर नुमाइंदगी दी जाए ना, तो ये उसको यानी ग्राउंड रियलिटीज को एक बाकायदगी से उसको उठाएंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनकी मदद के लिए भी भागेंगे, दौड़ेंगे। पर अगर ग्राउंड रियलिटी आप ये भी कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस मदद नहीं करती, कोर्ट मदद नहीं करती, ये निकाहनामे कौन बनवा देता है? कौन सा कोर्ट ऐसे सैंक्शन कर देता है? और जब ये बच्चियां अमूमन मैंने देखा है कि बहुत छोटी उम्र की होती हैं, इनको उठा के ले जाने वाले ये कौन है? ये लोग जिनको इनका समर्थन मिलता है? अभी एक अपना मैरिज एक्ट, जिसमें 18 साल की बच्ची की शादी वाला, ये 2 बार बिल पास किया था। एक बार तो हालांकि पास भी हो गया, लेकिन उसके बाद फौरन उसके बाद जो मुदाखलत की गई उनकी पार्लियामेंट की तरफ से, और उस बिल को दोबारा जो है खारिज कर दिया गया। इस तरह के हालात हैं सर। भागचंद भील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है, क्या कोर्ट इंसाफ करता है कि नहीं, और ये लड़की जो है वहां पर कोर्ट में जाकर क्या कहती है, क्योंकि परिवार का कहना है कि कोर्ट के सामने वो सच बता देगी। अभी वो प्रेशर में है। सो वी सी एंड we'll continue to track this story. Thank you for joining us. We're going to take a very short break here on the Nation at